مضمون بڑا خوبصورت ہے، آپ کی زندگی کا صحیح فیصلہ آپ کی زندگی کو اس کے بدل کے عصا جو ہے وہ پراپر ورکنگ کے اندر نہیں ہے، نہ تو وہ پراپر چل پاتا ہے، یعنی مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ آج کہ رحمت یا فضل کا گھر، یہ ہوش بیاتی حضا جس کا مطلب یہ کہلاتا ہے فضل کو مقرر کیا ہوا تھا، یہ شفا دینے کا ایک بگ اور بڑا انتظام خدا نے کیا ہوا تھا کہ اس کو جب فرشتہ آسمان سے آتا، یہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ تو نے آسمان سے آنا ہے اور زمین پر جو حوض بنایا گیا ہے اس حوض میں اترنا ہے، اور اتر کر بدلنے سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، آپ کی بیماری آپ کے فیصلے سے بدلے گی، آپ کو برکت آپ کے فیصلے سے بدلے گی۔ تیار کر، بنجر پن ختم کر، سختی کو ختم کر، کامل ٹھکانی کا علاج کر، بے ایمانی کو ختم کر، دلوں کو تیار کر تاکہ خداوند کے کلام کو سنیں، مسیح کے نام میں آمین۔ مضمون بڑا خوبصورت ہے، آپ کی زندگی کا صحیح فیصلہ آپ کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا صحیح فیصلہ جو ہے یہی آپ کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ خداوند کے کلام میں سے اس سے پہلے کہ ہم جائیں، آج تیز رفتار زمانے کے اندر آپ جہاں بھی روڈ میں چلتے ہیں آپ کو تیز رفتاری نظر آئے گی، آپ زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک پرسن جو ہے وہ بڑا تیز رفتار نظر آتا ہے، اور تیز رفتاری کے ذریعے ہم شارٹ کٹ وے سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ غریب جو ہے وہ امیر ہونے میں تیز رفتاری میں لگا ہوا ہے، اور امیر جو ہے وہ اور زیادہ امیر ہونے میں تیز رفتاری میں لگا ہوا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ روئے زمین کے اندر ہیں وہ اپنی زندگی کو تیز رفتاری کے ساتھ گزارتے گزارتے بڑی زندگی میں اپنے فیصلے غلط کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کی زندگی کا صحیح فیصلہ آپ کو بھی بچائے گا اور آپ کے گھرانے کو بھی بچائے گا۔ آج بہت سارے لوگوں کے خاندان برباد ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے آپ کا فیصلہ آپ کا حتمی ہوتا ہے اور آپ کا پرسنل فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے فیصلوں کو خدا کے اوپر نہیں چھوڑا، کیونکہ ہم خود سے فیصلہ کر کے خود سے اپنی زندگی کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ اگر کسی کا جھگڑا ہوا ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی کے اچھے تعلقات نہیں ہے، تو آپ اپنی زندگی کے اندر خود سے فیصلہ کر کے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اپنی زندگی کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دے، اپنی زندگی کے فیصلوں کو خدا کے اوپر چھوڑ دے اور خداوند کے سامنے جھک جائے، خداوند کے حضور میں جھک جائے اور گھٹنے ٹیک لیجئے اور کہنا شروع کر دیجئے، خداوند میری زندگی کا یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہوا، میری زندگی کا یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہوا، میری زندگی کا فلاں فیصلہ مجھ سے غلط ہوا۔ اپنی زندگی پر جھانکنا شروع کر دیجئے، اپنی فیملی کے اوپر نظر دوڑائیے اور نظر دوڑا کر اپنی زندگی پر غور کیجئے، اور غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ان فیصلوں کو تلاش کرنا شروع کر دے، ان چیزوں کو تلاش کرنا شروع کرے اور فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ کہاں کہاں پر مجھ سے میری زندگی کے اندر غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور آپ اندازہ کریں جہاں جہاں پر آپ کے غلط فیصلے ہوئے وہاں پر آپ نے دکھ اٹھایا، وہاں پر ان فیصلوں کی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہوئی۔ لیکن جیسے ہی جس دفعہ آپ نے خدا کو اپنے فیصلے میں شامل کر لیا، جس جگہ پر آپ نے کلام کو پڑھا اور یہ سوچا کہ اب میرا فیصلہ خدا کے کلام کے ذریعے ہوگا، اس دن آپ کے فیصلے صحیح ہوں گے اور آپ کو برکت ملے گی، آپ کو نجات ملے گی، آپ کی زندگی کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ آئیے زوردار تالیاں خداوند کے کلام کے لیے، خداوند کے کلام کے لیے زوردار تالیاں۔ کلام آپ کی زندگی کے فیصلے ٹھیک کرے گا۔ اس لیے آپ خداوند کے حضور میں اپنی زندگی کے فیصلوں کو غور کریں۔ بڑی جگہ پر ہم نے فیصلے غلط کر دیے، بڑی جگہ پر ہم نے سوچا اور اپنی سوچ کے مطابق کام کیا، لیکن آپ اپنی زندگی میں
खुदावंद को फैसला दें। जरा निकालिएगा मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 5वां बाब है, पहली आयत मुकद्दसा से पढ़ना शुरू कीजिएगा। एक शख्स है जो इस कदर बीमारी की हालत में है, उसका चलना इस कदर नकारा हो चुका है कि बेबसी की हालत में है। वो ऐसी बेबसी की हालत में है, उसके बॉडी पार्ट्स जो है, उसके बदन के अज़ा जो है वो प्रॉपर वर्किंग के अंदर नहीं है, ना तो वो प्रॉपर चल पाता है, यानी मुफलूज हो चुका है, वो पाँच जिंदगी बसर कर रहा है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए, हमारी जिंदगी में जहां पर कोई दूसरे हमारा साथ छोड़ दें, लेकिन हमारा खुदावन यीशु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए अपनी जिंदगी पर क्यों हम अपने फैसलों को खुदावन के हुजूर पेश नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम अपनी तर्ज जिंदगी के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो मैंने कहा है मेरी जिंदगी उसी के मुताबिक होनी चाहिए। हमने फैसला अपने खुदा को नहीं दिया। अगर मुकद्दस पौलुस कहता खुदावन मैंने 14 खतूत लिखने हैं या मैंने 14 खतूत लिख दिए अब तक, तो आप ही मेरी बीमारी दूर कर दें। उसने अपनी जिंदगी का फैसला किसके हुजूर छोड़ा? खुदा के हुजूर। अब मुझे बताएं कि मुकद्दस पौलुस, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी तर्ज जिंदगी कैसी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन उसकी जिंदगी में हमें दुख नजर आते हैं, बीमारी नजर आती है, मुश्किल नजर आती है, परेशानी नजर आती है, तकलीफ नजर आती है, मुसीबत नजर आती है। तो उसने अपने खुदा का दामन नहीं छोड़ा, अपने खुदा की हजूरी नहीं छोड़ी। पढ़िएगा जरा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे। यहाँ पर गौर कीजिएगा, बैत हस्दा इब्रानी में, और इसका मतलब ये है कि रहमत या फजल का घर। ये हौज बैत हस्दा, जिसका मतलब ये कहलाता है फजल, रहमत या फजल का घर, क्योंकि यहाँ पर बीमारों को, गरीबों को, और जितने लोग बीमारियों मुश्किलात के अंदर जकड़े हुए लोग थे, वो पानी में उतरते और उन पर रहमत जारी हो जाती, उन पर फजल जारी हो जाता। इसका मतलब ये बयान किया गया है कि ये बैत हस्दा, जिसका मतलब रहमत यानी फजल, फजल का घर है, रहमत का घर है। यहाँ पर लोगों के ऊपर फजल किया जाता था, जहाँ पर लोगों पर रहमत की जाती थी। जी, इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और बस मुर्दा लोग, यानी बीमारों की वजाहत की गई। पहले बताया गया बहुत से, ऊंची बोले, बहुत से बीमार लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और आगे लिखा है इनमें से बीमार और अंधे और लंगड़े और बस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर रहते। इसका मतलब ये वो बीमारियां हैं जो डॉक्टर या तबीब उनका इलाज नहीं कर सकते। इसका मतलब साबित हुआ कि लोग अपने बीमार बदनों को लेकर वो हौज के किनारे के पास जाते और मुंतज़िर रहते कि ताकि पानी को हलाया जाए। उसका तरीका कार क्या था? पढ़िए जरा। क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता, इसका मतलब खुदा ने आसमान पर एक फरिश्ते को मुकर्रर किया हुआ था। ये शिफा देने का एक बिग और बड़ा इंतजाम खुदा ने किया हुआ था कि उसको जब फरिश्ता आसमान से आता, ये उसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि तूने आसमान से आना है और जमीन पर जो हौज बनाया गया है उस हौज में उतरना है, और उतर कर तूने बैठे नहीं रहना, बल्कि क्या करना है? पानी हिलाना है ना? हमारे जैसा होता तो कहता कोई गल नहीं, थोड़ा जा झट के आराम कर लिया फिर पानी को हिलाएंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पर फरिश्ते की जिम्मेदारी नजर आती है।
अगर फरिश्ता अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके और खुदा की दी हुई उस जिम्मेदारी को, खुदा की दी हुई उस ड्यूटी को वो पूरे असल तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर पूरा कर रहे हैं, तो हम इंसानों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत है। आज बहुत सारी चर्च मैनेजमेंट, बहुत सारे चर्च के लोग, बहुत सारी जिंदगियां अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना पसंद नहीं करते, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर एक जिम्मेदारी है कि पानी को हटाना है। आगे तरफ पढ़िएगा। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। एक बात है कि पानी हिलते जो कोई, कौन उतरता पहले, है ना। जो कोई पहले उतरता वो क्या पाता? शिफा पाता। अब मेरे यीशु और हौज में फर्क देखिए, है ना। अब यीशु और हौज को फर्क के अंदर लेकर आएंगे। ये हौज इसलिए था जब फरिश्ता उतरता पानी हलाता, जो उतरता वो शिफा पाता। लेकिन मेरे यीशु को अगर पूरी कलीसिया के लोग हैं, हम ईमान से शिफा पाना चाहते हैं, एक वक्त में पूरी कलीसिया के तमाम बीमारों को शिफा मिलेगी। ये फर्क है हौज और यीशु के अंदर। उसमें तो वो शिफा पाएगा जो पहले उतरेगा, और एक पर्सन, है ना, ओनली वन पर्सन शिफा पाएगा, जो कोई पहले उतरेगा। लेकिन मेरे यीशु की कुदरत का कमाल देखें कि मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ, अगर पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घरों पर खड़े हो जाए, बैठ जाए, पूरी दुनिया के लोग ये ईमान के साथ यीशु नासरी को पुकार कर कहें कि हम शिफा पाना चाहते हैं, एक वक्त में यीशु मसीह नासरी पूरी दुनिया को शिफा देने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया। हमें वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा पहले मैं इस फैमिली को शिफा दे दूं, पहले मैं इस फैमिली को शिफा दे दूं, पहले तो हाथ इस पर्सन के उठे हैं, है ना। यीशु नासरी ऐसे लफ्ज नहीं बोलते। ये फर्क है हौज और यीशु मसीह नासरी में। ये उस वक्त का इंतजाम किया गया था कि जो कोई पहले उतरेगा वो क्या पाएगा? शिफा। शिफा। जी। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। एक शख्सियत के बारे में बताया गया, एक पर्सन के बारे में बताया गया, और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया। वहाँ एक, आपने बोला वहाँ एक शख्स था। वहाँ एक क्या था? शख्स था। शख्स था, यानी एक शख्स। आगे जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसकी बीमारी का टाइम पीरियड बताया गया। टाइम पीरियड क्या है? 38 वर्ष से बीमारी में क्या था? मुब्तला था। टाइम पीरियड बताया गया। भाई यूं लगता है उसके साल बताए गए हैं। उसकी बीमारी का अरसा इस कदर लॉन्ग पीरियड है कि 38 साल से वो बीमारी के अंदर मुब्तला है। भाई कितने वर्ष से है? 38 बरस से। आप अंदाजा करें, आज शायद हम 1-2 वर्ष के या 1-2 दिन के बीमार और शिफा ना मिले, हम पादरी चेंज कर लेते हैं, है ना। भाई साहब की करिए 3 संडे तो तुसी गया सी ते असी तो 20 संडे आ गए हैं, है ना। 3 भी नहीं बताते, है ना। कई दफा हमारी जिंदगियों की सिचुएशन ऐसी होती है, हम पादरी बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते। हम चर्च बदलना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते। हम लीडर बदलना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी बदलना नहीं चाहते। भाई आपको चर्च बदलने से, लीडर बदलने से, पादरी बदलने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बीमारी आपके फैसले से बदलेगी। आपको बरकत आपके फैसले से बदलेगी। इसलिए बड़े लोग जिंदगी के अंदर बदल कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। आप मुझे बताएं, एक डॉक्टर हो जो MBBS हो, है ना,
और एक डॉक्टर DHMS है ना। तो मुझे बताएं कि आप फैसला करेगा कि अगर MBBS डॉक्टर का पेशेंट DHMS डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? इसका मतलब ये है सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा नबी यीशु नासरी है, कोई पास्टर नहीं है। आमीन। कोई पास्टर कोई रेवरेंड हो